यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़के होने दे, तू गलियों में जगराते कर, मैं सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं, तेरी मिट्टी में मिल जा। ಇದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಈ ಸಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 45 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಅದು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಬೇರೆ 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 ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಯಾವುದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಮೆರಿಟ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಆ ಛಲ ಇರಬೇಕು, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1000 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ, 2 ಸೇರಿ. ಈಗ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ 2 ಬ್ಯಾಚ್ 3 ಬ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಭಾಯಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು IAS IPS ಇಂಥ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಹೊರಗಿಂದ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಪಾಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಕ್ದಮ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ. ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ बेंगलुरु कर्नाटका में जो पुलिस सिविल सब इंस्पेक्टर्स के लिए भर्ती हो रही है, उसके लिए
नौजवानों को ट्रेन करने के लिए फ़िज़िकल और उनके रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए यहाँ पे उनके ठहरने का, खाने का, पीने का और एक प्रोफेशनल तौर पे ट्रेनिंग देने का इंतज़ाम किया है। जो नौजवान एप्लीकेशन सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए डाले हैं और डालने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पूरी सहूलतें दी गई हैं। अभी इस वक्त फ़िलहाल 31 नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, और इसमें किसी मज़हब और मिलत का अलग से इंतज़ाम नहीं, सबके लिए है। इसमें गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, सबके लिए सहूलत बनाई गई है। और यहाँ पे न सिर्फ थियरी के लिए, रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए ट्रेनिंग होगी, बल्कि उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए भी, उनकी रनिंग के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए, इस तमाम के लिए भी एक अलग से इंस्ट्रक्टर रखकर, एक सब इंस्पेक्टर को रख के, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को, उनसे इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं, जो नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, वो पुलिस में भर्ती हो ताकि मुल्क और कौम की खिदमत अच्छी तरह से कर सकें। इस काम के लिए जो इसमें हिस्सा लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या उनकी कंडीशंस होने चाहिए तलबा की? जो भी नौजवान, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री, BA, BCom, BSc, BBA, BCA, उसके साथ साथ अगर इंजीनियर BE करके हैं, BTech करके हैं, लॉ करके हैं, एग्रीकल्चर के भी ग्रेजुएट हैं, कोई भी ग्रेजुएट हो, फार्मेसी का ग्रेजुएट है, डिग्री है, तो वो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। फिजिकली कंडीशंस में कोई फिज़िकल हाइट उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और उनके जो चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट वो 80 और 80 पर 6 80 इंच होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, और उसके साथ उनको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 86 मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी। इतना अगर उनके पास है तो इस पर अपीयर हो सकते हैं। बाकी की रनिंग वगैरह की ट्रेनिंग उनको कुछ नहीं आ भी रहा है, तो हम यहाँ उनको ट्रेन कर देंगे। बैच वाइज हो रहा है सर? अभी ये फर्स्ट बैच अभी शुरू हुई है, इसके साथ साथ अभी पहला पोस्ट 540 पोस्ट के लिए आया है, अब उसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी अगले महीने से एक और 402 पोस्ट की कॉन्फर किया गया है, उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। They go on for years. So my examination started in 2014 and our results were out in 2017. Prior to this, I have worked in various other fields. I'm an MSc in biotechnology. I worked as environmental engineer in Accenture as well as in technologies. Thereafter, while writing KPSC exams, 2011 attempt, I failed it during my interview. And I had secured a PA and was working as a PA for 6 months in prosecution department when I got my results. Before joining the police department, I had no idea how it was commissioned. I had no idea of it. And I'm not a sports person through my school years. But thankfully, DYSP post, when I questioned many of them, like our sir, how it would be. DYSP is a sort of post which is a senior police officer and post. We would not have much of physical training is what I was thought of. But when I went to KPA, Karnataka Police Academy, for my training of 1 year, initially we were asked to perform most of the sports. प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें जो है सबको आगाह कराते हैं, सबको मालूम कराते हैं कि ऐसा एक प्रोग्राम हमें स्टार्ट कर रही बोलकर। वो आज जो है स्टार्ट हुआ। आज स्टार्ट कैसे हुआ, तो हमेशा में जो है एक हॉस्टल है, हॉस्टल में रहने का पूरा इंतज़ाम करें, खाने का इंतज़ाम है, और उसके साथ साथ क्लासेस भी यहाँ कंडक्ट करने का कोशिश करें। मगर फिर कमेटी में जो है एक डिस्कशन हुआ कि अच्छी से अच्छी एक इंस्टीट्यूशन में इनको पहली बार जमा को वहाँ उनको अच्छी कोचिंग देंगे बोलकर। तो वहाँ जो है कोचिंग करने के वास्ते उनके साथ MOU होकर है और बेहतरीन कोचिंग करने का इंशाल्लाह इरादा भी है। मतलब क्या बोलो तो ये स्टार्ट करने के बाद इससे रिज़ल्ट हमने अच्छा आना, वो मकसद हमारा। इतने रुपए खर्च करने के बाद में हमेशा से उसका रिज़ल्ट सही आना, और सही आने के वास्ते अच्छी जगह कोचिंग का इंतज़ाम करें। और हमने यकीन भी है इंशाल्लाह अब जो बैच आकर है वो बैच बेहतरीन भी दूसरे इनको फिज़िकली हमें चेक कराए, और उनके एग्ज़ाम्स के जो उन्होंने सबमिशन करते हो पूरे डिटेल्स लेकर जो है
उनको ये स्टार्ट कर करेंगे। सर ये जो कैंडिडेट्स आज आए हुए हैं ये बैंगलोर से रिलेटेड है या बैंगलोर के बाहर भी? नहीं, ये पूरे कर्नाटक से ही है। जिस इंस्टीट्यूशन में जी। ट्रेनिंग दी जा रही है क्या वहाँ पर कोई चार्जेस है या वहाँ पर भी फ्री है या उसका खर्चा जो है इदारा उठा रहा है? अच्छा, वहाँ का जो खर्च है पूरा इदारा चाहिए कर रहा सो बेर कर रहा सो। और बच्चों से एक पैसा नहीं ले रहे। यहाँ का जो भी खर्च है खाने का, पीने का, रहने का, जाने आने का और जो कोचिंग सेंटर है उसका पूरा खर्च जो है HHS और HMS अदारा जो है वो बेर कर रहा बस। तो ये पहली बैच है जिसको यहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी दिया जा रहा है, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है, ये पहली बैच है? जी जी, पहली बैच। इससे पहले जो है सिर्फ एक महीना 2 महीने का सब बुलाते, ये कोचिंग क्लासेस होती थी, चल जाते थे। मगर इस बार जो है मैं उनको बाकायदा यहाँ स्टे करको जो है कौन रहना चाहते उनको रहने दे को ऐसी बैच पहली स्टार्ट करें। और हमारी ख्वाहिश है क्यों बोले तो जब फिर जो कॉल्फर कर रहे हैं इसके वास्ते स्टेप बाई स्टेप बैचेस ले जाने का। क्या इदारे की जानिब से कोई नंबर्स फिक्स किए गए कि मैक्सिमम इतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, इतने ही कैंडिडेट को दिया जाएगा, या अनकाउंटेबल कैंडिडेट्स भी आएंगे तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा? ऐसा नहीं, एक बैच हमारी तरफ से 50 की बना रही। अगर 50 की बैच कंप्लीट होगी तो और एक 50 की बनाती है। इसमें इतने नंबर्स का भी नहीं है, जितने भी आ सकते आने दो, इंशाल्लाह उनका खर्च में बेर करने तैयार है। बस हमारा एक इरादा क्या आएगा तो कौम में जो है एक बेदारी आ जाना और जो पढ़कर ही उन्हें अपना सही इस्तेमाल करको एक पोजीशन पर आना बस। सर और एक बड़ा मसला ये है कि कौम के बहुत सारे नौजवान नशे की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, नशे की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जी। क्या इन नौजवानों के लिए आपकी तरफ से कुछ तरबीती कैम्प या कुछ प्लान्स वगैरह हैं? जी जी, वो भी पिछली मरतबा हमारी जो है कमेटी में डिस्कशन में आया मैटर। जा बजा देखे तो उसके मेरे में और बहुत सारी जगह जो है ये नशीले चीज़ों का इस्तेमाल नौजवान बहुत कर रहे हैं, तो उनको हटाने की वजह से सबसे पहले हमारी कोशिश एक हो रही है। क्या हो रही है बोले तो किसी को भी पढ़ने आओ बोलो तो आते नहीं पढ़ने वास्ते में, तो उनके वास्ते स्पोर्ट्स और जिम ये 2 चीज़ का पहले इंतज़ाम करना चाह रहे हैं मैं। स्पोर्ट्स में बोले तो ऑटोमेटिक आदमी आ जाता अपना वक्त गुजारने, और जैसा वो वक्त गुजरेगा तो वो नशे के से दूर हो जाता उन्हें। स्पोर्ट्स और जिम ये दोनों शुरू करना चाह रही। इंशाल्लाह अगर वो फिर एक बार तय होगा तो इंशाल्लाह वो स्टार्ट करती हैं। उसकी तरफ से जो है वो नशे का वक्त जो रहता है अक्सर शाम में लेना, सुबह में लेना, दोपहर में लेना, ऐसा रहता है। वो वक्त पर अगर उन्हें यहाँ बिजी हो गए तो वो दूर हो जाता है। वो ये पहला स्टेप है हमारा। तो क्या ये एरिया वाइज हो जाएगा या HHS और HMS कॉम्प्लेक्स में ही कायम किया जाएगा, जिम या स्पोर्ट्स क्लब जो भी? कोशिश हमारी है कि पहले यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद में इसका रिजल्ट देख ले को, उसके बाद जहाँ जहाँ मेंबर्स हैं वहाँ क्या ऐसा कर सकते हैं वो देखेंगे बोल को है। मगर उसके साथ साथ हमारी और एक रिक्वेस्ट अपने साहिबों से जो है, एक तरफ ही छोड़ो ग्रेजुएशन करको ही यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग ले रही, इनका एक रहता है। मगर जो SSLC फेल, 9th फेल, 8th फेल के जो बच्चे हैं वो बच्चों को ये सब मालूम होना बोले तो तुम्हें लोगों का छमना साथ होना सो। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो स्टार्ट करे हमें वो बहुत सारे कोर्सेज है और बहुत फ़ायदेमंद है, उन्हें खुद अपना एक ओनर बन जाता है वो। मतलब उसके वास्ते में मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट बार बार क्या है बोला तो जहाँ तक हो सके तुम्हारे वीडियो, तुम्हारे जो टीवी चैनल्स हैं उसके तरफ से कौम में और दूसरों को भी ये बात जहन में डालो कि वो किसी हालत से आकर इसमें एडमिशन लें